ایک چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، عورت کی بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی۔ عورت کہتے ہی ہیں، عورت یہ عربی کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ رب العالمین ہماری پوشیدہ چیزوں کی حفاظت فرما۔ المرأۃ عورۃ، عورت اپنے آپ میں خود ایک پوشیدہ چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ۔ جب ایک عورت بے پردہ گھومنے لگتی ہے تو سماج کے اندر بے حیائی بڑھتی ہے، بے شرمی بڑھتی ہے، سماج کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، سماج کے اندر لکھوں کی پیدائش ہوتی ہے، سماج کے اندر روڈوں پر چلنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سماج کے اندر بیہودہ قسم کے نوجوانوں کی بہتات ہو جایا کرتی ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلا کرتی ہے تو زناکاری عام ہوتی ہے، فحاشی عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، نوجوانوں کی آنکھ میں اسے خوبصورت بناتا ہے تاکہ اس کی طرف میلان ہو۔ ایک بات میں بولتا ہوں، آپ کے یہاں کے لوگ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا جو گیم ہے نا، اس کو بند کرو، بہت خطرناک گیم ہے۔ لوگ بڑے حیران کن جملے کہتے ہیں بھائی سب سے پیار کرنا چاہیے، ہمارا دل بڑا نرم ہے، ہم اس لیے فلاں لڑکی سے پیار کر، لڑکی کہہ رہی میں لڑکے سے اس لیے پیار کرتی ہوں کہ ہر ایک سے اچھے سے بات کرنا چاہیے، اس لیے میں اس سے میٹھے میٹھے میں بول لیتی ہوں، بات کر لیتی ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ اسلام بھی تو کہتا ہے ایک دوسرے سے پیار سے بات کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، یہ جو محبت ہے نا، جس کو آپ محبت کہہ رہے ہو، یہ جو مرد عورت کا اٹریکشن ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، یہ فطرت ہے، یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ مرد عورت کے قریب آئے گا، عورت مرد کے قریب آئے گی تو دونوں کا بانڈ بنے گا، تعلق بنے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ حلال طریقے سے بنانا چاہتے ہو کہ حرام طریقے سے بنانا چاہتے ہو۔ محبت آپ اپنی حلال کرنا چاہتے ہو، اپنی محبت آپ حرام کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، جب آپ حرام محبت کے پیچھے پڑتے ہو تو شیطان آپ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فلمی دنیا کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ جب کسی کو دل سے چاہو تو ساری کائنات ملانے کی کوشش کرتی ہے نا۔ میں بولتا ہوں یہ ڈائلاگ جانتے ہو کس کے لیے؟ وہ ساری کائنات کی جگہ پہ آپ شیطان کر دیجئے۔ جب آپ ناجائز محبت کر رہے ہوتے ہو، جب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کہانی بنا رہے ہوتے ہو، اس دنیا میں گم ہو رہے ہوتے ہو، اللہ کی قسم ہے شیطان آپ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان آپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بیچ میں بریک اپ ہو بھی جاتا ہے تو شیطان دونوں کو تڑپا دیتا ہے، دونوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ کہتی ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہ جو آپسی تڑپ پیدا ہوتی ہے، جو آپسی لگاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ کام ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان تو بنایا ہی گیا ہے، مرد تو بنایا ہی گیا ہے کہ عورت کے قریب آئے، عورت کو تو بنایا ہی گیا کہ مرد کے قریب آئے، یہ دونوں تو آپس میں ایک نہ ایک دن ملیں گے ہی، لا وقت سے پہلے ہی دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ شیطان اس ناجائز اور حرام رشتے کو ملانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ میری محبت سچی ہے اس لیے وہ میرے پاس آ رہا ہے، اور آج کی لڑکیوں کو لگتا ہے شاید وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اس لیے میرے پیچھے پڑا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، شیطان تم دونوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطان تم دونوں کی حیا کا جنازہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جب یہ میاں بیوی کی محبت بن جاتی ہے، جب یہ تعلق، یہ محبت حلال طریقے سے ایک مرد عورت کی زندگی میں آتی ہے تو میرے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ لیکن وہی شیطان، وہی ابلیس
जो शादी से पहले इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता था, नाजायज रिश्ते को समाज में बढ़ाना चाहता था, दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पा रहा था, शादी के बाद अल्लाह के नबी फरमाता है इब्लीस का सबसे बड़ा मिशन ये हो जाता है कि दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं, आपस में प्यार से रहने नहीं देंगे, जब तक इनको जुदा न करवा दे, तलाक न करवा दे, हम छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आई? यही शैतान जीएफ और बीएफ के मामले में मिलाने की कोशिश करता है, और जब ये रिश्ता पवित्र हो जाता है, पाक होता है, मियां बीवी के शक्ल में होता है, तो ये तलाक दिलवाने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी की हदीस है सही मुस्लिम की, वक्त नहीं है ना मैं हदीस सुनाता वो, तो इस शैतान के गेम को समझो। अल्लाह के नबी फरमा रहे औरतें ज्यादातर जहन्नम में क्यों जाएंगी? एक वजह यह है कि औरतें बेशर्म, बेहया, बेपर्दा वाली जिंदगी गुजारेंगी। सही मुस्लिम किताबुल लिबास 2128 नंबर की रिवायत है, प्यारे पैगंबर फरमाते निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना कास्निमातिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह व ला यजिदना रीहहा व इन रीहहा ला युजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो कपड़ा ही नहीं पहनती, नंगे बदन घूमा करती हैं, या कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी बदन नजर आती हैं, बदन उनका नशीबो फराज नजर आते हैं। वो औरतें ऐसे लिबास को इख्तियार करती हैं कि उनका पहनना ना पहनना दोनों बराबर हो जाता है। अल्लाह के नबी ने इस तरह की औरतों की एक अलामत ये बतलाई है कि इस तरह की औरतें अपने सर पे जूड़ा ऐसे बांधती हैं कि वो जूड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है, जैसे ऊंटनी का कोहान ऊंट का कोहान होता है, उसी तरीके से ये औरतें अपने सर पे अपने बालों को इकट्ठा करके बांध लेती हैं। और आज आप शहरों के अंदर देख लीजिए, आप मुंबई चले जाइए, आप अपने दिल्ली चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, पटना चले जाइए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, ये फैशन आज की औरतों में आम हो गया। और ज्यादातर नकाब वाली औरतें ये फैशन कर रही हैं कि बाल को जूड़ा बनाकर अपने सर के ऊपर ये बड़ा सर रखने के बाद ऊपर से नकाब के लिबास को पहनती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो औरतें हैं जो जन्नत में कभी नहीं जाएंगी, जन्नत के अंदर इनका दाखिला नहीं होगा, और बल्कि जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। और जबकि जन्नत की खुशबू तो कई सालों की दूरी से मिल रही होगी, यानी जन्नत से इनको कोसों दूर कर दिया जाएगा। तो यह बताया जा रहा है कि इस तरह की औरतें भी जहन्नम में जाएंगी, ज्यादातर जाए। एक आखिरी बात, 5वीं पॉइंट पेश करके बात खत्म करूंगा। मैंने 10 पॉइंट नोट किए थे, लेकिन मैं 5 पे बात खत्म कर रहा हूं। औरतों की एक गलती यह है, ये घर बहुत तोड़ना जानती है। सही बोल रहा हूं? घर तोड़ने में महारत हासिल होती है। और हकीकत में औरत की बहुत बड़ी दुश्मन है। मर्द औरतों का दुश्मन नहीं है, नहीं दुश्मन है, औरत की दुश्मन है। और मैं दुश्मनी अगर बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। आपकी हमारी सबकी शादी होती है ना, देखने कौन जाता है? औरत। नापसंद कौन कर रहा है? औरत। ऐब कौन निकाल रहा है? औरत। नाक नहीं सही, ये कौन कह रहा? औरत। खूबसूरत ना, ये कौन कह रहा? औरत। वो नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो औरत। दुश्मन कौन है? औरत। शादी हो गई, घर में आ गए, एक बहू है, एक सास है, एक ननद है, तीनों औरत। लेकिन घर कैसे अखाड़ा बना रहता है, मर्द देख रहा होता है। औरत की दुश्मन है। और कुछ औरतें जब अपने घर में झगड़े करवा कर थक जाती हैं, तो पड़ोस में एंट्री मारती हैं, धमाकेदार एंट्री। पड़ोस में कोई नई वाली बहू आई है, उससे मिलेंगे। आपको नहीं पता तुम्हारी सास ऐसे थी, हाँ तुम्हारी ननद ऐसे थी, अरे तुम्हारे मियाँ जी जो शादी हुई ना, पहले फलां लड़की से फंसा हुआ था। ये कौन बता रहा होता है? पड़ोस की। कौन? औरत। एक औरत को भड़का रही उसके शौहर के खिलाफ। सास बहू से लड़ रही है, बहू सास को अपना दुश्मन समझ रही है, ननद अपनी भाभी से लड़ रही है, भाभी अपनी ननद को नहीं देखना चाह रही, औरत के दुश्मन। पीस कौन रहा बीच में? दो पत्थरों के बीच में किसका आटा बन रहा है? मर्द का। किसका बन रहा है? इसलिए मैं ये कहा करता हूं अक्सर कि जिसके घर में 2-4 बहनें हों,
माँ हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, और 2-4 भाभियाँ भी हों, यानी अपने भाई हो छोटे बड़े, उनकी भी शादी हो चुकी हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो और उनकी शादी हो जाए, और ऐसे घरों में आमतौर से खटपट होती रहती है। ऐसे माहौल में जिस शौहर ने, जिस बेटे ने, जिस भाई ने झगड़े को डील कर लिया और इस मामले को हल कर लिया, यानी एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ बहन है और एक तरफ भाभी है, ये चार को चारों औरतें हैं, लड़ रही हैं, या तो 2 ग्रुप है या 3 ग्रुप है या 4 ग्रुप बनी हुई है, और मर्द को सामने खड़ा कर दिया गया, माँ अलग शिकायत कर रही है, बीवी अलग शिकायत कर रही है, बहन अलग शिकायत कर रही है, और घर की दूसरी औरतें और अलग शिकायत कर रही है, पड़ोस वाली अलग कर रही है। ऐसे मौके पर आदमी का दिमाग क्या करेगा? फट जाएगा, पागल, वो पागल खड़े खड़े हो जा रहा। मैं कहता हूं ऐसे मौके पर जिस मर्द ने होशियारी से, चालाकी से, बारीक बीनी से, हिकमत से झगड़े का हल कर दिया, मां भी खुश, बीवी भी खुश, बहन भी खुश, अल्लाह के कसम वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो पूरा देश चला सकता है। इतना मुश्किल काम है ये बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ मां हो, एक तरफ बीवी हो, बहन हो, सबको मामले को हल करना। इसीलिए ज्यादा तजर्बेकार लोग कहा करते हैं कि ऐसे मौके पर खामोश, नहीं बोलने का, क्योंकि तुम मना ही नहीं सकते दोनों को, तीनों को, तो इसलिए बोलो ही ना, तीनों खुश, लड़के फिर एक हो जाएंगे, सुबह लड़े शाम को साथ में खाना बनाएंगे, फिर शाम को लड़े सुबह साथ में, आप खामखा की दुश्मनी। और घरों में जब मर्दों की एंट्री हो जाती है, घर के झगड़ों में जब मर्द इन्वॉल्व होने लगते हैं, मर्द एंट्री कर जाते हैं, फिर वो झगड़ा दूर तक चला जाता है, फिर वो झगड़ा कोर्ट तक, कचहरी तक, पंचायत तक चला जाता है। इसलिए मर्दों को चाहिए घर के झगड़ों में बहुत हद तक इग्नोर करने की कोशिश करें, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। आखिरी हदीस सुनाता हूं, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब 5170, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खब्बब ज़ौजत इम्रिइन औ ममलूकहु लैसा मिन्ना, जिसने किसी की बीवी को बिगाड़ा, गौर से सुन, जिसने किसी की बीवी को बिगाड़ा, सिखाया, पढ़ाया, वर्गलाया, उसे फुसलाया, क्यों? ताकि वो अपनी सास से लड़ जाए, ताकि वो अपनी ननद से लड़ जाए, ताकि वो अपने शौहर से लड़ जाए, ताकि वो अपने शौहर से तलाक ले ले और मैं उस औरत से शादी कर लूं। कुछ ऐसे भी मनचले होते हैं कि शादी होने के बाद भी लड़की का पीछा नहीं छोड़ते और उस औरत के खिलाफ, उस औरत को भड़काते रहते, तेरा आदमी तो भला भला चक्कर चल रहा है, और उसको परेशान करते ताकि ये तलाक ले ले और फिर उसके बाद मैं उससे शादी कर लूं। अल्लाह के नबी ऐसे मर्दों, ऐसे जवानों, ऐसी औरतों जो भी मियां बीवी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे, आपने फरमाया मन खब्बब ज़ौजत इम्रिइन औ ममलूकहु लैसा मिन्ना, जो ये जुर्म करता है वो मुसलमानों में से नहीं है, ये काम मुसलमानों वाला नहीं है कि इस पवित्र बंधन को तोड़ने की कोशिश कोई करे। ये तो इब्लीसियों का काम है, ये तो शैतानों का काम है। शैतान यही काम कर रहा है कि मियां बीवी को अलग करना चाहता है, और ये माएं अगर अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ भड़का रही हैं तो माओं की गलतियां हैं, और अगर ये बीवियां अपने शौहर को उसकी मां के खिलाफ भड़का रही है तो ये महापाप कर रही है। ऐसे ही कोई भी औरत, कोई भी मर्द अगर किसी मियां बीवी के जोड़े में गलती पैदा कर रहा है, गलत फहमियां डाल रहा है और कोशिश कर रहा है दोनों अलग हो जाए, नबी फरमाते लैसा मिन्ना, ये मुसलमानों का अमल नहीं है, ये मुसलमानों के तरीके पर नहीं है। ये 5 बातें हुई, औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको जहन्नम से महफूज रखे। इलाल आलमीन हमारी ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए। माओं और बहनों को अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को बुरा ना माने कि मौलाना तो बहुत चीख चीख कर औरतों के ऊपर भड़ास निकाली है। भड़ास नहीं निकाला हूँ, इस्लाह मकसूद है, और जितनी भी हदीसें सुनाई गई मेरे नबी का मकसद भी इस्लाह ही था, आपकी कमी या आपकी बुराई बयान करना नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा देखा है, ज्यादा नेकियां तुम करो ताकि तुम जहन्नम से बच सको। लिहाजा आप नेकियों में आगे बढ़े, हर तरह की नेकी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, अमल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, नेक अमल ज्यादा से ज्यादा करना है, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने शौहरों को नेकियों की तरफ लाएं, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختلف یوٹیوب چینل والے ہمارے دوست احباب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خالص فرمائے۔ یہ لوگ پروگرام لائیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے، دنیا تک جاتا ہے، اور یقین مانیے میری یہ تقریر میں یہاں بول رہا ہوں، میری اہلیہ میرے گھر پہ سن رہی ہے، میری والدہ سن رہی ہیں، پورا علاقہ جہاں تک جاتی ہے، جہاں جاننے والے لوگ سنتے، نہ جانے کون کون سے لوگ سن رہے ہیں، نہ جانے کس کی اصلاح ہو جائے، نہ جانے کون سمجھ جائے۔ تو اس صدقہ جاریہ میں یہ ہمارے بھائی حضرات بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔